सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपकी जीओसी स्ट्रांग होनी चाहिए। जीओसी में हम पहले डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ जीओसी, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो लेट अस गो टू अवर टॉपिक, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, बेसिकली हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक्चुअली कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास चेन ऑफ कार्बन एटम्स है, तो इस चेन ऑफ कार्बन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्प्लेस होते हैं, कैसे पोलराइजेशन होती है इस मॉलिक्यूल में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। This electron displacement, this is called displacement of electrons or electron displacement effects. Basically, we have different types of electron displacement effects which we are going to study over here. हम इन effects की application part भी पढ़ेंगे। Actually, अगर आपका ये वाला part बहुत strong हो जाएगा तो आपकी organic chemistry strong हो जाएगी। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। We will solve all those numericals how the questions are asked. First, we will discuss electron displacement effects. So, how many types of electron displacement effects we have to discuss? We have discussed first inductive effect. We have to discuss inductive effect. Inductive effect. Number second, we have to discuss mesomeric effect. Mesomeric effect. And resonance effect, mesomeric and resonance effect. They are basically almost the same. Number third, we will discuss hyperconjugation. 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 And number fourth, we will discuss over here electromeric effect. Electromeric effect. And there are other effects, steric effect of resonance or steric effect of steric inhibition of resonance. There is inductometric effect. We will also discuss them, but these 4 are major types. Out of these first three effects, they are called polarizable effects. Polarizable effects. Polarizable effects. They lead to the polarizability in the molecule. All these 3 effects, they are permanent effects. They are permanent effects, and the only one that's lost one, it's a temporary effect. Temporary effect. We will discuss it separately. We will discuss all of them separately. It's called a polarizability effect. Polarizability effect. Now let us discuss first effect, that is inductive effect. We will start our discussion from inductive effect. Basically, every effect will take 2 or 3 lectures each. क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट इन डिटेल। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमें क्या बताता है? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। Only sigma electrons are displaced. For example, if we consider a chain of atoms, this is a carbon chain of atoms. To this carbon chain of atoms, we are attaching a different group, a heteroatom. Heteroatom means other than that of carbon. For example, a halogen atom. For example, chlorine. Now see, in this case, आपको क्या remember करना है? आपको याद होना चाहिए electronegativity difference. Then and only then you can say what type of group it is present. हमें पता है जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की, जिस एलिमेंट की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरह खींचता है। देन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन. Since electrons will be shifted more towards chlorine, electrons are negatively charged, it will acquire certain negative charge. Means this atom will become electron rich. Since these electrons shift from, these electrons displace from carbon to chlorine, therefore carbon becomes electron deficient. It is represented by del plus.
Now this is the displacement of electron. This is a sigma bond. This is the displacement of sigma electron when a more electronegative atom or a different group is attached to carbon chain. Now as a result of this displacement of the sigma electrons, a polarization is created in the molecule. A polarization means creation of charges, creation of negative charge and positive charge. Now see, this carbon atom becomes electron deficient. This carbon atom becomes electron deficient. It needs the electrons. It takes electrons from this carbon atom. Since this carbon atom gives electrons, it becomes more electron deficient. And then this carbon atom takes electrons, it becomes more electron deficient, like that. This moment, this displacement of electrons along a chain of carbon atoms, when a different atom is attached to that chain, this moment of sigma electrons, it is known as inductive effect. बेसिकली ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इन्वॉल्व करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ डिफरेंट एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन. नाउ सी, इसके इंपॉर्टेंट कुछ जनरलाइजेशंस ये हैं. हमने यहाँ पे देखा हेलोजन जो था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा था. Such type of groups जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, those groups which withdraw electron towards themselves, they are called electron withdrawing groups. Then this will be electron withdrawing group. Electron withdrawing group. Electron withdrawing groups are those groups which attract electrons towards themselves. Electron withdrawing groups. Now, electron withdrawing groups will be always those groups which will withdraw electron towards themselves, or we can call them electron attracting groups. Electron attracting groups. Electron attracting groups. Now, all those groups which attract electrons, which withdraw electrons, negative charge will be created on them and electrons will flow towards them. For example, ये हमारे पास में electron withdrawing group है. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यहाँ पे होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगी और कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी. बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूजफुल आने वाला है. इसी से हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने जा रही है. ना दीज आर -I ग्रुप्स. इन ग्रुप्स को हम जो भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स हैं इनको मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस किया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग अट्रैक्टिंग पावर. तो Nr3 सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग है, देन NH3, देन NO2, देन Cn, देन COH. आपको ये ऑर्डर मालूम होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एंट्रेंस पे यह भी क्वेश्चन आता है, 2-4 ग्रुप्स देगा आपको -I ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, और आपसे पूछा जाएगा अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर. इसलिए आपको ऑर्डर याद होना चाहिए ना. सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड होगा कार्बन चेन और इस कार्बन चेन पे हमारा MgCl अटैच होगा ना. आप सबको पता है ये जो Mg है ये मेटल है. मेटल इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे Mg इलेक्ट्रॉन देगा. अगर Mg इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स कार्बन होगा. अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स कार्बन होगा तो कार्बन पे स्लाइट डेल नेगेटिव चार्ज आएगी और मैग्नीशियम पे डेल प्लस चार्ज आएगी. नाउ सी, magnesium gives electrons. This will be called electron donating group. This group will be called electron donating group. Electron donating group. All those groups we donate electrons, they are called electron donating groups or electron releasing groups. Electron releasing groups. Electron releasing groups. In short, we can write them as ED, electron donating groups, EDG. And these are represented as EWG, electron withdrawing groups. आगे मैं यही मेंशन करूंगा EDG, EWG. You must be able to understand what are EDG groups and what are EWG groups. तो ये जो हमारा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन रिच चार्ज ज्यादा आएगी, वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा. मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया है Basics how the chemical reactions take place, that's nucleophiles and electrophiles. जरूर आपको उस लेक्चर को पहले पढ़ना, उसके बाद आप यहाँ आना. बेसिक आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा. Now see, basically this inductive effect, it is shortly represented as I effect. We classify this inductive effect into two categories.
Those substances in which electron withdrawing group is present, they are called as minus I groups, and the effect is called minus I effect. And those chemical compounds in which plus I group is present, they are called as electron donating groups, and the effect is called plus I effect or electron donating effect. Now see, ये जो हमारा इंडक्ट इफेक्ट है, ये इन्वॉल्व करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, displacement of sigma electrons along a carbon chain, either towards electron withdrawing group or away from electron withdrawing group or away from electron donating group. ये जो इफेक्ट है, पहले ही मैंने कहा, ये परमानेंट इफेक्ट है. It is permanent effect. These are certain important points. Number first involves displacement of electron. Number second, it's permanent effect. Number third, it is distance dependent effect. Distance dependent effect. By distance dependent what we mean? Distance dependent का ये मतलब है कि ये जो आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नेक्स्ट कार्बन जो है इस पे ज्यादा इफेक्ट होगा कंपेयर टू दिस कार्बन पे, कंपेयर टू दिस कार्बन. मींस अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप से दूर जा रहे हो, जो मैग्नीट्यूड है आई इफेक्ट का वो डिक्रीज होता है. Means magnitude of I effect decreases as we move away from this electron withdrawing or electron donating group. That's why it is known as distance dependent effect. Now ये जो हमारा I effect है, it is basically of two types. We have two types of I effect. We have plus I effect. It's classified into two types. We have plus I effect, and we have minus I effect. Minus I effect. Plus I effect is shown by those compounds in which there is presence of plus I group. These are the groups we show plus I effect. Usually they show, otherwise they compete sometimes. This O negative, CO negative, this is tertiary alkyl group. Now this group C, CH3, 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 this is tertiary alkyl group. This is tertiary alkyl group. This is tertiary alkyl group. This is carbon atom. To this carbon atom there are 3 carbons directly attached, therefore it is tertiary. Now we'll take secondary CH, CH3 and CH3. Basically जब मैंने आपको सिखाया था डिग्री ऑफ कार्बन, वो लेक्चर आप पहले देखना, आपको पता चलेगा प्राइमरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्वार्टरी क्या होता है. We'll take one more CH3 and CH2. Now see, हमारे पास में अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सी इन दिस केस अल्काइल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है. इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. ये मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, इट विल बिकम सम सॉर्ट, इट विल अटेन सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी. यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देता है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस. देयरफॉर प्लस आई इफेक्ट विल बी मोर ओवर हियर कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर. That means these groups which I have mentioned over here, they are plus I groups, and whenever these plus I groups are present over there, what's shown? It is plus I effect. And these groups, they are minus I groups. Whenever minus I effect is, minus I groups are present over there, minus I effect is shown over there. Now see, we have plus I effect and minus I effect. Plus I effect is shown, it is shown by electron donating groups. By electron donating groups means those groups which have plus I effect. Those groups which have plus I effect, I have quoted them over here. O minus, CO minus, tertiary carbon, secondary carbon, primary carbon, methyl carbon, then isotopes of hydrogen. In case of isotopes, अगर आपके पास isotopes है ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, आइसोटोप में जिसका मास ज्यादा होता है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ट्राइटियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू ड्यूटेरियम, कंपेयर टू हाइड्रोजन. Now minus I effect is shown when there are minus I groups, electron withdrawing groups, minus I groups. When minus I groups are present, like we have Nr3 plus, like we have NH3 plus, like we have NO2 plus, like we have Cn plus, Cn
NO2 plus not Cn, like we have COOH, like that, like halogens fluorine, chlorine, bromine, iodine, they show minus I effect. तो बेसिकली अगर हम ये इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हमें कहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेशन पार्ट में जरूरत लगता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. एप्लीकेशंस, तो इंडक्टिव इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशंस है. एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है. नंबर फर्स्ट, ये हमें एक्सप्लेन करता है डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करता है. नंबर सेकंड, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. व्हाट आर कार्बोकैटायंस वी विल डिस्कस. इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, हमने भी पढ़ा नहीं है, वो भी पढ़ेंगे. इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट एक्सप्लेन्स एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पार्ट भी. और इससे हम एक्सप्लेन करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, reactivity of alkyl halides. These are the applications which we have to study. in applications को कैसे inductive effect से explain किया जाएगा. Let us take first application, that is dipole moment. dipole moment को first application को discuss करेंगे. first application dipole moment. Our first application is dipole moment. Dipole moment. You can compare dipole moment of organic compounds using I effect. Now see, हमारे पास में CH3F है, CH3Cl है, फिलहाल F को छोड़ेंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. CH3Br है, CH3I. तो आपको कहा जाता है दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, या इनको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट. तो आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ऑल हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, आयोडीन भी. नाउ इनके ऑर्डर पे डिपेंड करता है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग देन ब्रोमीन देन आयोडीन. सो अगर यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस. यहाँ पे ब्रोमीन अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज. बट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ क्लोरीन इज मोर. तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेशन होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर. डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस कहाँ पे ज्यादा होता है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी, जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा. यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा होगी कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा. एज अ रिजल्ट इसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर होगा कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस. बस बेसिकली आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको माइनस आई इफेक्ट इन ग्रुप्स का याद रखना है. तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन बी विच विल बी ग्रेटर देन सी. बट यहीं पे एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F एंड CH3Cl, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट हम चेक करेंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्लोरीन का आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना चाहिए ज्यादा क्लोरीन की तरफ, सॉरी फ्लोरीन की तरफ कंपेयर टू क्लोरीन की तरफ. तो क्या होना चाहिए, दिस फ्लोरोमीथेन जो है इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू क्लोरोमीथेन. बट दैट इज नॉट द केस. व्हाई, नाउ सी क्या होता है, फ्लोरीन का साइज जो है ये बहुत स्मॉल इन साइज है कंपेयर टू क्लोरीन. अगर साइज स्मॉल है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग बिटवीन द एटम्स भी अच्छा होता है, क्योंकि साइज ऑफ कार्बन एंड साइज ऑफ फ्लोरीन, कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल है. इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बनता है. इसकी वजह से क्या होता है, फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग भी हो रही है. फ्लोरीन बैक बॉन्ड्स दीज इलेक्ट्रॉन्स. एज अ रिजल्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होती है वो ओवरकम खुद ही फ्लोरीन करता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ CH3Cl. बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से.
फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और मेंशन करूँगा CH3F, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा बनता है कम बनता है कंपेयर टू डाइपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड, कंपेयर टू डाइपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड। मैं अब इनको लेबल ऐसे करूँगा, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो क्या होता है, दिस एक्सेप्शन वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, देयरफॉर इसका डाइपोल मोमेंट B से कम होता है, तो B का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद C, क्योंकि C और A में क्या फर्क होता है, C में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवरकम करती है साइज को, देन D। This is dipole moment. How we can explain dipole moment on the basis of inductive effect. Now see, let us discuss one more example. आपको जो 2-4 एग्जाम्पल्स देंगे, आपको बोलेंगे 4 एग्जाम्पल्स में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3NO2 एंड वी हैव CH3NR3+, और हमारे पास में CH3I है। What is the dipole moment order between 1, 2 and 3? क्या देखना है आपको, माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है। माइनस आई ग्रुप NR3 का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा द मोस्ट माइनस आई शोइंग ग्रुप NR3 का, उसके बाद NO2 का, उसके बाद I का। जिसका माइनस आई ज्यादा है उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी, चार्ज सेपरेशन होगी, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है A का ज्यादा होगा कंपेयर टू B, कंपेयर टू C। हमने ऑन व्हाट बेसिस इसको एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड एप्लीकेशन, ये पहली एप्लीकेशन थी। नंबर सेकंड एप्लीकेशन, एक्चुअली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे एप्लीकेशन पार्ट पे ही डिपेंड करते हैं। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो फर्स्ट। We can explain number second application. Number second application is acidic nature. Acidic nature. Acidic nature. Now बहुत important है। देखो हमारे पास में फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये हमारे पास अल्कोहल है। आपको पता है मैंने एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है एसिडिक, I have uploaded 4 lectures for acidic and basic nature। तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है एसिड्स और बेसिस के सारे कंसेप्ट्स। वहाँ मैंने आपको बताया है एसिड वो स्पेशी होता है जो H+ आयन रिलीज करता है। दिस इज एन अल्कोहल। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर इफ दे रिलीज दिस H+ आयन इन aqueous solution, means in aqueous solution when we treated water, if it gives this H+ ion then they are acidic. Since alcohols give H+ ion, they are acidic. Although they are weak acids, they are acidic in nature. Now see, अब हमें एक्सप्लेन करना है 2-3 अल्कोहल्स के एग्जांपल्स लेंगे, उनको कंपेयर करेंगे विच वन विल बी मोर एसिडिक। कैसे कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे उनमें से कौन H+ आयन को ज़्यादा इजीली डोनेट करेगा ना। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जो OH का बॉन्ड है यही डिटरमाइन करेगा कौन ज़्यादा एसिडिक है। क्यों, जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितना हाइड्रोजन OH के साथ मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा उतना हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन एज H+ रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो कौन से फैक्टर पे एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा, दैट फैक्टर शुड डिटरमाइन दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर किसी वजह से वीक होता है, अगर ये बॉन्ड किसी वजह से किसी भी फॉर एग्जांपल इफेक्ट से वीक होता है तो क्या होगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो H+ इजीली लॉस हो जाएगा। अगर H+ इजीली लॉस होगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यही चीज एक्सप्लेन करने के लिए, यही बात एक्सप्लेन करने के लिए हम 2-3 एग्जांपल्स को लेंगे और वी विल डिस्कस इन विच ऑफ दोज एग्जांपल्स which one will be more acidic or less acidic. Now let us take this type of compound CH3. Let us take CH3OH, then we will take CH2ClOH, then we will take CH2NO2OH. Now this is example A, this is example B, this is example C. हमें बताना है ये 3 अल्कोहल्स दिए हुए हैं, 3 में से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो हम क्या करेंगे, एसिडिक क्यों है ये, बिकॉज ऑफ दिस OH बॉन्ड। अगर ये OH बॉन्ड वीक है
तो इजीली ब्रेक होगा। अगर इजीली ब्रेक होगा तो H प्लस आयन रिलीज होगा। जितना जल्दी H प्लस आयन रिलीज होगा उतना ज़्यादा एसिडिक है। तो हमें देखना है ये OH बॉन्ड जो है ये किस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है ना। सी यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। आपको पता है जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे H प्लस ईजिली रिलीज नहीं होगा। अगर H प्लस ईजिली रिलीज नहीं हुआ तो यहाँ पे एसिडिक नेचर कम होगा। नाउ इन दिस केस सी क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन की जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसने हाइड्रोजन को बॉन्ड किया था उन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई, ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड वीक हो गया। अगर ये बॉन्ड वीक हो गया तो H प्लस ईजिली लॉस हो जाएगा। अगर H प्लस ईजिली लॉस हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। नाउ इन दिस केस देयर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन डिक्रीजेस। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा, इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। ना हमें ये पता चला यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे भी माइनस आई ग्रुप है। अगर प्लस आई ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज होगी, OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो H प्लस रिलीज नहीं होगा। अगर H प्लस रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। हम यहाँ से ये कह सकते हैं अगर प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस आई ग्रुप, तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। द मेथड, द मैकेनिज्म, द लॉजिक इज हियर। प्लस आई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है ऑक्सीजन पे। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये इजीली लॉस नहीं होता है, H प्लस यहाँ से नहीं जाएगा। अगर H प्लस नहीं गया तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ना माइनस आई ग्रुप अगर कहीं पे प्रेजेंट है, माइनस आई ग्रुप, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, एसिडिक नेचर के। जितने ज़्यादा माइनस आई ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। ना हमारे पास में यहाँ पे दो माइनस आई ग्रुप्स है। अब क्या करेंगे, हम फंस गए। दो माइनस आई ग्रुप्स में हम चेक करेंगे कौन सा ज़्यादा माइनस आई कैरेक्टर शो करता है। NO2 इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। देयरफॉर जो हमारा C है ये मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू B, कंपेयर टू A। Now let us discuss one more example. आपको अब याद रखना है अगर प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, अगर माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मैंने आपको कहा था इंडक्ट इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। वी विल टेक दीज एग्जांपल CH3 CH NO2 OH and we will take one more example CH3 CH2 NO2 CH2 OH। हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ये भी कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप, ये भी कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, दोनों एसिडिक होंगे, दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे। बट मैंने आपको कहा था जो आई इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जितना आई इफेक्ट दूर हो जाएगा उतना उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यहाँ पे आई इफेक्ट कार्बन पे है, जो कार्बन नेक्स्ट टू OH है यहाँ पे थोड़ा दूर है, देयरफॉर यहाँ पे डिस्टेंस आई इफेक्ट की ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, देयरफॉर फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक देन बी। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन दीज थिंग्स। नाउ एक और एग्जांपल करेंगे फॉर योर क्लियरिटी, एक और एग्जांपल करेंगे CH3 CH NO2 OH CH3 C NO2 OH। आपको बताना है बिटवीन A एंड B विच इज मोर एसिडिक। ना सी यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है,
माइनस आई ग्रुप की वजह से क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप है, द मोर द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड मोर विल बी एसिडिक कैरेक्टर, तो बी यहाँ पे ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू ए। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इट्स फर्दर एप्लीकेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सी, अगर आपकी जीओसी कमज़ोर है, अगर आपकी जीओसी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको मेरे लेक्चर वॉच करने होंगे, क्योंकि मैं आपकी जीओसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करूँगा। I hope you will like these videos. Thanks for watching.